যাবে না, যাবে না বললো। কে লাইভ করবো আপনি? আমি করবো। কি জ্বর এসেছে? হ্যাঁ জ্বর আছে? সেটা বলছি, একটু মেজাজ খারাপ, জ্বর নেই। অলঙ্কার বাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে তো। না, বিদ্যালঙ্কার বাড়ি চলবে। केशवजी गौरी मठ, विद्यालंकर मानिस, फेसबुक लाइव। गौरी मठ, मथुरा धाम, विद्यालंकर बानी, फेसबुक लाइव।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, হরি বল। आगे जाओ भाई, पीछे से क्या फोटो ले। এই তো আমি मैं तो बोला हमें बेदे अलंकारी बानी लाइफ বলো वो देखे जान
হরে কৃষ্ণ। আপনারা যে যেখানে আছেন ওখানেই বসে পড়ুন। আপনারা যে যেখানে আছেন ওখানেই বসে পড়ুন। ঘনশ্যাম প্রভু আপনি রেখে দিন ওখানে, দিয়ে দিন ওখানে। आप लोग जो जहाँ पर है कृपया बैठ जाए। आप लोग जो जहाँ पर है कृपया बैठ जाए। মন্দিরের সামনে যারা ভিড় করছেন ওখানে ভিড় করবেন না, বসে পড়ুন। এখন আমাদের ঘরে কথা হবে, বসে যান। হরে কৃষ্ণ। শ্রী গুরুদেব শ্রী গৌরচন্দ্রায়
वृंदावने गोपेश्वर और गोवर्धने चक्रेश्वर, काम्यवने कामेश्वर, नंदे नंदीश्वर, এই 5 মহাদেব উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলি সব বজ্রনাভের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যখন কারো মরার সময় হয় তখন কি করে, সে উল্টা সিধা কিছু কাজ করে। ভগবান রাম রাবণকে আক্রমণ করতে যান নাই। রাবণের যখন পাপের ঘোড়া ভর্তি হলো, সীতা দেবীকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন। ভগবান রামকে যুদ্ধ করতে হলো। তদ্রূপ কংস কৃষ্ণকে মারার জন্য কত কত অসুর, রাক্ষসী অসুর, অসুরের শ্বশুর কতকে পাঠিয়েছে, কিন্তু কেউ ফিরে এসে কংসকে বলে নাই কি হলো। তখন কংস কি করলো, যখন পাপের ঘোড়া ভর্তি হয়েছে, নিজের সোনার রথ পাঠিয়ে কৃষ্ণ বলদেবকে ধনুষ বাহানার যোগ্য করে মথুরায় আনালেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম অগ্রে রথে এলেন, আর সখাগণ বাবা নন্দ বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে এসেছেন, গরুর গাড়িতে করে। এখানে আসার পর কৃষ্ণ বলছেন, বাবা আমরা তো গ্রামে থাকি, একটু শহর দর্শন করে আসি। নন্দ বাবা চিন্তিত হয়ে গেছেন, এ তো চঞ্চল কি করবে না করবে ঠিক নাই। बोला बाबा अकेला नहीं जाऊंगा, दाऊ जी के साथ जाऊंगा। तब नंद थोड़ा आश्वस्त हुए, बता दाऊ इसको ध्यान रखना, ये चंचलता न प्रकाश न करे। যাচ্ছেন সখাগণ, যেতে যেতে যেন ধোবি অনেক সুন্দর সুন্দর রাজ পোশাক নিয়ে যাচ্ছে। বলে এই কিছু কাপড় দে তো, আমরা পরবো। বলছে গাঁव का गमार राज पोशाक पहनोगे, शर्म नहीं आती? क्या बोला, लगाया हाथ, गला कट गया। अब নিজের নিজের রঙের পছন্দ অনুসার সখাগণ সব কাপড় লুটপাট করে নিল, নিয়ে পড়েছেন। যখন যাচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছেন, এত বড় কাপড়। দেখেন না এখন বিরাট বিরাট বিয়ে বাড়ি হয়, মডেল একটু সাজিয়ে দেয়, এত বড় থাংরা দিয়ে যেন মনে হচ্ছে ঝাড়ু দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওই রকম কৃষ্ণ বলরাম সকলে এরকম। তারপর পাশে দর্জি পেলেন, এইটা ফিট করে দিবে। হ্যাঁ, কেন দিব না প্রভু, করে দিলেন, নাকি আশীর্বাদ দিলেন। যখন আসছেন আস্তে আস্তে সখাগণ বলছেন, কান্হা এ তো কংস তো অনেক বড়, এর কাপড় দেখে তো বুঝতে পারা যাচ্ছে, তুমি তো ছোট, মারেগা कैसे, कैसे मारूंगा, देखोगे? কৃষ্ণ কি করলেন, বিশাল চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। সখাগণ बाप रे बाप, खाना तुम इतने बड़े हो, तुम এত বড়। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কি করছেন, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तुम छोटे बन जाओ, ये रूम हमारा पसंद नहीं है। তিনি ছোট হয়ে গেলেন, পুরা বিশ্বাস হয়ে গেল কংসকে মারতে পারবে। আসছেন আস্তে আস্তে, যেখানে ধনুষ রাখা আছে, শিবের অনেক ধনুক ছিল, তার মধ্যে উনি দিয়েছেন পরশুরামকে, কংসকে এবং রাবণকে। কংসের কাছে যে ধনুষ ছিল 5000 লোক হচ্ছে, সবাই মিলে একসঙ্গে তো উঠাতে পারত। 7 তাল লম্বা ছিল এত বড় ধনুষ। আর মহারাজ জনকের কাছে যে ধনুক এসেছিল, ওটাও শিব ধনুষ। ও বলা হয়েছে ভাগবতে 300 জন সৈনিক উঠাতে পারত। যখন এসেছেন যেতে দিবে না, জোর করে কৃষ্ণ বললেন, সখাগণ গিয়েছেন, যেই ধনুষ 2 টুকরা হয়ে গেছে, 2 ভাই 2টো টুকরা নিয়ে সব পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ বিষ্ণু। কংস শুনি তো অবাক, এত ধনুষকে ভেঙে দিল। এখানে মথুরাতে, এখানে কি সাধারণী রতি, রতি 3 প্রকার, সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। এখানে সাধারণী রতির প্রধান হলেন কুব্জা। বলছে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড, যখন চোখে চোখে দেখলে প্রেম হয়, তারপর চলে গেলে আর মনে থাকে না, তারপর সাধারণ রতি। কুব্জা আছেন, এবং যখন কৃষ্ণকে ওই সকলের সামনে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, তখন যে মথুর রমণীগণ স্তবস্তুতি করছেন, ওই সব সাধারণ রতি। তারপর সমঞ্জস, সাধারণ সমঞ্জস, কৃষ্ণকেও প্রীতি করবে, আর অন্যান্য যে প্রীতির বস্তু সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে প্রীতি করবে, তাকে বলা হয় সমঞ্জসা রতি। ওর প্রধান হলেন রুক্মিণী এবং সত্যভামা। তারপর হলো সমর্থা রতি,
समर्थारती सर्वप्रधान हलेन के श्रीमती राधा ठाकुरानी उन्नतपुरे चंद्रावती ओनारी चचेरी बहन खुर्दत बोन समर्थ माने संपूर्ण रूपे कृष्ण के वशीभूत करते समर्थ ताके বলা হয় समर्थारती এই समर्था এখানে সাধারণ রতি দ্বারকায় समंजसारती আর বৃন্দাবনে समर्थारती এইখানে দীর্ঘ বিষ্ণু একে তখন করার পরে ঠিক হয়ে গেল গিয়ে পরের দিনে কংসকে মারলেন আপনারা জানেন যারা আগে এসেছেন আমাদের মঠের সামনে আছে রঙ্গেশ্বর মহাদেব আর ওখানে ছিল কংস টিলা যেখানে কংসের আখাড়া ওখানে আপনারা সব শ্রবণ করেছেন এখন এই স্থানের সম্বন্ধে বর্ণনা হিন্দিতে বলবেন এরপরে আমরা এখান থেকে মথুরা দেবী শ্বেত বরাহ কৃষ্ণ বরাহ ওখানে কালিয়া দমন কালিয়া মর্দন শ্রীকৃষ্ণ ওই সব দর্শন করে আমরা যাব দ্বারকাধীশ গতাশ্রম টিলা হরে কৃষ্ণ चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत से तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं प्रभुज चरण श्रीपाद माधव गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद सन्यासी वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मथुरा परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह दीर्घ विष्णु की कथा आप लोग ने महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया। महाराज जी बहुत तत्व सिद्धांत और सरल सहज सरल रूप में बताया। उसी कड़ी में दो शब्दों भी मैं आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया एक कंस कृष्ण को मारने के लिए उतना से लेकर के अनेकों असुरों के मथुरा में भेजे वृंदावन में भेजा किंतु कोई अभी तक वापिस नहीं आया। इसलिए कंस विचार करने लगे कि जब तक कृष्ण वृंदावन में रहेगा उनके किसी प्रकार मारना संभव नहीं है। हमारे जीव गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं। देखो सांप यदि गर्त में रहे गड्ढा में रहे ऊपर से जितना ही तुम पिटाई करो सांप निकलेगा। अब बताओ आएगी पाए वो तो और भी नीचे जो है कुंडली पका करके रह जाता। तो सांप के निकालने के लिए एक ही उपाय है उसमें गर्म पानी डाल दो गर्त में वो अपने आप बाहर आ जाएगा तब उसके मार सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंस अपने परिषद के साथ असुरों के साथ विचार किया कि किसी प्रकार कृष्ण के यदि वृंदावन से मथुरा लाया जाए तब हम लोग सभी लोग घेर करके एक साथ में मार चले। किंतु देखो इस कथा किसी के नहीं बताने जाए क्योंकि देखो एक गोपनीय तत्व है हवा के भांति कहीं चले जाए तो कृष्ण बलराम को निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने किया कि किसको भेजा जाए वृंदावन और कौन लेकर के आएगा कृष्ण बलराम। इसलिए देखा हाँ मथुरा में तो रहते हैं अक्रूर वास्तव रूप में वो कृष्ण बलराम के प्रति स्नेह प्रीति रखते हैं ब्रजवास के साथ स्नेह प्रीति रखते हैं। एक काम किया जाए यदि अक्रूर के यदि भेजा जाए अक्रूर बुद्धिमान भी है और सब प्रकार के सुदक्ष भी है इसलिए अक्रूर जरूर ये काम करेंगे। इसलिए कंस ने किया कि बहुत मीठी मीठी बातों के द्वारा अक्रूर के बोले
ये देखो अक्रूर आप यहाँ पर एक सुंदर धनुष यज्ञ करेंगे और इसमें अनेक बड़ा मेला होगा, आनंद उत्सव होगा। देखो हम लोग सुना कृष्ण बलराम और बहुत उत्साह रहते हैं, इस धनुष यज्ञ में उत्साह भी लेंगे। यहाँ पर हम लोग रेसलिंग क्या बोले कुश्ती भी लड़ेंगे और कुश्ती में भी भाग लेंगे और मल्ल युद्ध आदि होगा। बहुत अक्रूर मणि मन विचार करने लगे, ये देखो जिसके पाप के खड़ा जब भर जाता है वो अपने आप ही फूट जाता है। ये कंस के पाप की खड़ा मानो अभी भर गया, इसके फूटने वाले हैं। और दूसरी क्या है, जिसके मृत्यु के समय आ जाता है वो जानी ऐसी काम करते हैं जिस प्रकार जानबूझ करके सांप के गर्त में जैसे हाथ घुसाते हैं, सांप उसको काट देता है। ठीक उसी प्रकार ये कंस के मृत्यु के समय आ गया है। कृष्ण भी काल को बुला करके लेकर के आ रहे हैं और अक्रूर विचार करने लगे, ठीक है आयन ही परम लाभ, अहो मेरा भी परम लाभ है, कृष्ण बलराम का हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार लंबी कथा है, तो संक्षेप में बताता हूँ। देखो तो अक्रूर ने क्या कि चल पड़े। कौन सा दिन चले थे वो? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन चल पड़े और द्वादशी रहे। त्रयोदशी के दिन जो है यात्रा शुभ माना जाता है और उस दिन विचार करने उस दिन लेकर के आएंगे और चतुर्दशी के दिन और ये सब मेला होगा और उसमें कंस के पास ऐसे विचार करके देखो अक्रूर चल पड़े और चलते चलते जहां पर नंदगांव के समीप वहीं पर आगे छोटी छोटी बैठक कहा जाता है और वहीं पर अक्रूर ने क्या देखा, कृष्ण के सुंदर चरण कमल को देखा, गायों की जो है खुरों की देखा और सखाओं के जो है वहां पर सुंदर जो स्थान गोचारण सुंदर सुरम्य भूमि को दर्शन करके अक्रूर लोटपोट खाने लगे। अहो कैसे सुंदर है, मन मन विचार करने लगे क्या कृष्ण बलराम मुझे चाचा चाचा कह के मुझे बुलाएंगे। ऐसे भाव में विभोर होकर के अक्रूर चलते चलते शाम के समय पहुंचे, नंदगांव में पहुंचे, नंद महाराज के साथ मिले और वार्तालाप होने लगे। सारे रात कथा ये सुनाने लगे ये कृष्ण बलराम किसी प्रकार मथुरा में जाए, धनुष यज्ञ आदि दर्शन आदि करेंगे, ये समस्त कथा सुनाए। किंतु नंद महाराज किसी प्रकार से अनुमोदन नहीं दिया क्योंकि ये संभव ही नहीं है। यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन करते हैं, देखो इस कथा को जब कृष्ण बलराम जाएंगे वृंदावन से मथुरा, उतने सुनते ही गोपियां क्या करने लगी, रो पड़ी। अहो विधाता तब न कच्चित दया, इस श्लोक के द्वारा सुंदर कहा जाता है भावी विरह। देखो विरह भी तीन प्रकार होता है, एक भावी विरह होता है, भावन विरह होता है, एक भाव्य विरह होता है। मिलन भी उसी प्रकार होता है, एक भावी मिलन होता है और एक भावन मिलन होता है और एक भाव्य मिलन होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस करते हैं ना, उसी प्रकार ही ये समस्त भाव समझना चाहिए। इसके अधिक व्याख्या करने की जाए तो मेरा समय तो निकल जाएगा असली कथा में। इसलिए देखो गोपियां सब रो पड़ी है। ये कृष्ण बलराम कहाँ जाएंगे, वृंदावन से मथुरा चले जाएंगे। यह सुनते ही समस्त गोपियां रो पड़ी। इधर क्या हुई, नंद महाराज ने किसी प्रकार अनुमोदन नहीं दिया। यहाँ पर हमारे अक्रूर जी ने किया कि एकांत में कृष्ण बलराम के साथ मिले और कृष्ण के कहने लगे, देखो हे कृष्ण सुनो, वास्तव तुम्हारे माता पिता जो है देवकी और वसुदेव, ये तो तुम यहाँ पर रह रहे हो, चलो वहीं पर। देखो किसी को लाना है अपने कार्य सिद्धि के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है किंतु अक्रूर जानते थे ये नहीं, ये मत कहो ये कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र है। पुत्र किसके है, नंद जसोदा के, दे नमनी नंद भाज्या देवकी जसोदा। ये अक्रूर भी तत्व सिद्धांत जानते हैं किंतु देखो जो कार्य सिद्धि करना है ना तब तो कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है, उसमें दोष लेने लगते हैं। शास्त्र में, नीति शास्त्र में क्या है, विवाह आदि में झूठ फूट बोल दो विवाह हो जाए। चलो इसी प्रकार भी कहने लगे, क्या की जाए, कृष्ण बलराम के उत्साहित करने लगे। ये देखो वास्तव में तुम्हारे माता पिता कौन है, देवकी और वसुदेव। और देखो पुत्र के कर्तव्य क्या है, पिता माता को सहायता करना,
देखो दुष्ट कंस है? कैसे तुम्हारे माता पिता के कष्ट दे रहे हैं, अंध कारागार में रखे हैं, और उनके छत्ती पर इतने विशाल पत्थर रख दिया और वो लोग तड़प तड़प कर रहे हैं। और यही नहीं, कम से दुष्ट दुराचार है, देवकी के जो 6 पुत्र के जो है मार डाला, तुम्हारे भाइयों की मार डाला। इसलिए तुम्हारी कर्तव्य है पिता माता को रक्षा करना। इस प्रकार जब हम देखो कृष्ण बलराम तथापि मानने के लिए तैयार नहीं है। जो देवकी और वसुदेव मेरा माता पिता है। तब कंस ने ये काम करने लगे, कहले देखो इससे तो काम नहीं हो रहा है। तब कृष्ण कहले देखो कोई भी बात नहीं है, एक काम करो, देखो वहां पर सुंदर मल्ल युद्ध हो रहा है, तुम लोग तो इतने सुंदर हो, यहाँ पर तो युद्ध करते हो, देखो मल्ल युद्ध करते हो, कुश्ती दंगलबाजी करते रहा जो अपने सखाओं के साथ, किंतु देखो उधार जो है कितने बस बड़े बड़े सब चाणूर मुष्टिक आदि ये सब जो है, और उनके साथ तुम लोग देखो तुम्हारे और भी आनंद होगा। और देखो उसे विशाल भरत धनुष भी है, और उसके देखो कैसे सुंदर हो दिखे। भाई देखो जब कृष्ण के जब ऐसे बात बोला ना, कृष्ण के पास क्षत्रिय भाव आ गया। हाँ हम जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, हम कंस के मार डालेंगे, हमारे माता पिता कैसे कष्ट दिया, और देखो और हम ऐसे करेंगे। बस इसके बाद क्या की कृष्ण ने क्या की, आकर के नंद महाराज की गोद में बैठ गए और उनकी दाढ़ी ऐसे पकड़ कर कहने लगे, पिताजी हम मथुरा जाएंगे, हम तो आज जाएंगे, कल दर्शन करेंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे, बस इतनी तक है, ज्यादा क्या करना है वहां पर। और पिताजी वहां पर मैंने सुना जब मल्ल युद्ध भी है, हरधनुष भी है, हम लोग तो धनुष देखा ही नहीं है। यह तो मानो लकड़ी के ऐसे बना देते, ऐसे करके मारते हैं, तो क्या बोले आप आदि पर वो तो खिलौना भी है। वहां पर हमने सुना विशाल हरधनुष है, हम जाएंगे। हाँ पापा देखो वात्सल्य भाव में प्रसन्न नंद महाराज आंखों से आंसू तो गिरा। पहले तो किसी तरफ से जाने क्यों, आंखों की पुतली है कैसे, किंतु जब कृष्ण बलराम जब बार बार कहने लगे, दानी पे ऐसे कहने लगे, पापा मैं जाऊंगा, दर्शन करके आ जाऊंगा। देखो नंद महाराज ने तब तक की आधी रात में ऐलान कर दिया, काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। केवल कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, उस सभा में बोले हम लोग भी जाएंगे। और देखो उस विशाल जगह है, जिसमें जगह में हम लोग कंस के लिए देखो दूध दही ये सब भी हम भेंट भी देंगे, हम लोग सभी एक साथ में चले। और जाके नंद महाजब ऐसे ऐलान कर दिया, सखा लोग तो भी और भी आनंद आ गया। सब लोग कहने लगे देखो आश्चर्य की बात है, तो अपने देखा तुम्हारा काम तो हो गया। अपने प्रातः काल में सुंदर रथ सजाया, उस रथ में कृष्ण राम को बैठाया, आगे चलने लगे। गोपियां इसके सुनते रथ के घेर लिया, सत्याग्रह लगा दी। सत्याग्रह हम जाने नहीं देंगे, किंतु देखो अक्रूर ने किया कि इधर उधर से रथ को जो है घुमा करके चलने लगे। यह तो भी हमारे जिनके सही पाद भी श्लोक भी लिखते हैं, अक्रूर ने किया कि रथ के पहिया जो है गोपियों की छत्ती पर चढ़ा दिया। ये तात्पर्य है छत्ती पर नहीं चढ़ाया, माने कृष्ण बलराम जो जिनके हृदय में बैठे हुए हैं, इसके भी ऐसे चकनाचूर कर दिया, उनके भाग में प्रेम हो गया। इसी प्रकार बता दिया। चलो तब आगे चले, जब यहाँ पर आते रहे, जब आकर के जब अक्रूर घाट पर आए, जहाँ पर कृष्ण बलराम जहाँ पर अक्रूर घाट है, हम लोग जाएंगे एक दिन। अक्रूर घाट पर जब आए, वहां पर एक आश्चर्य की बात है। अक्रूर मन विचार करने के क्या ये कृष्ण बलराम स्वयं भगवान है ना है, तो वहां पर जब स्नान करने के लिए वहां पर रथ में बैठे रहे दोनों भाई, और जब वो ब्रह्म स्नान करने लगे तो देखा सत्य शिष्या विष्णु के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन करने लगे। तो अक्रूर के प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया, ये कृष्ण बलराम ये साधारण ये साक्षात भगवान है। अच्छा यहाँ पर हमारे तत्व विचार भी देते हैं, सिद्धांत भी देते हैं। जे देखो कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं आते, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति।
उसी प्रकार नंदनंदन कृष्ण को वृंदावन के नहीं छोड़ करके नहीं जाते हैं। जब अक्रूर रथ के लेकर के मथुरा की तरफ सीमाना पार करके यानी वृंदावन के सीमाना पार करके जब मथुरा में प्रवेश किया तब नंदनंदन कृष्ण रथ से अंतर्ध्यान होकर के वृंदावन में अलक्षित रूप में अनविजिबल रूप में रहने लगे और यहीं पर मथुराधीश कृष्ण रथ में बैठ गए। किंतु ये जो तब तक तो लोग जानते हैं दूसरे के नहीं है, इसलिए कहते हैं गतागति नहीं होता है, 3 धाम कहता है, तो द्वारिका धाम, मथुरा धाम और वृंदावन। किंतु वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, मथुरा के कृष्ण वृंदावन मथुरा में रहते हैं और द्वारिकाधीश के कृष्ण द्वारिकापुरी में ही रहते हैं। किंतु तथापि ऊपर से दिखाई पड़ रहे जो आ रहे हैं गतागति दिखा रहे हैं, प्रकट लीला में ये दिखाना पड़ता है जो मैं दिखा दे। किंतु वास्तव रूप में तत्व सिद्धांत जो है जो मैंने बताया जो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन के। अब ये कथा में जब यहाँ पर आगे जो चलते चलते बोले आगे पहले दिन क्या करें, हम मथुरा भूमि को दर्शन करें। ये मथुरा भूमि कैसे है, बहुत सुंदर की धाम है। उस समय मथुरा भी बहुत सुंदर था। देखो जहाँ पर इतने विशाल मेला हो रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की मेला हो रहे हैं। कंस ने इस मथुरापुर के इतने सुंदर रूप में सजाया था। हम लोग जब वृंदावन से आते थे गेट जो है कैमरे घाट से आगे जो दिग्गेट नहीं, अरे लाल दरवाजा जो है बिल्कुल जो यहाँ पर आते हैं वास्तव रूप में हृदय कहते थे उसी तरफ से ये आने लगे। चलो हम तो उसमें नहीं थे, ये थे तो उसी प्रकार आने लगे। सखाओं के साथ चलते चलते मथुरापुर के बहुत सुंदर दर्शन किया। दर्शन करते करते जब इसी स्थान पर आ गए तब सखा लोग कहने लगे कन्हैया हम लोग ने सुना जे कंस के शरीर विशाल है, gigantic बॉडी है और हमने सुना जे चाणूर मुष्टिक ये सब जो मल्ल युद्ध है ये सब विशाल विशाल है। अच्छा बताओ तुम उनके साथ कैसे तुम कुश्ती कैसे लड़ोगे? भाई शेर के साथ चूहे जो है वो भी दंगल कर सकते हैं, अब तो जैसे चूहा है इतना छोटा सा है मानो। और ये हमने सुना वो देखो वो चाणूर मुष्टिक आदि विशाल विशाल शरीर है, तुम कैसे? कन्हैया बोले सारे तू ऐसे क्या बात बोलते हैं, तू मुझे सोच रहे मैं चूहा थोड़ी हूँ, मैं भी विशाल शरीर बना सकता हूँ। हाँ कोई विशाल शरीर बना सकता है, आप बना सकते हो? आप बताओ नहीं जैसे ऐसे रहे और वृद्ध हो जाए तो और भी छोटा हो जाए। कन्हैया बोले अरे नहीं सारे हम बड़ा करता हूँ। बोले कैसे दिखाओ कैसे दिखाओ? बोले कन्हैया कहने लगे बम 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 इतने विशाल शरीर बने। सखा लोग देखने लगे हाँ कन्हैया तू जो कहते हो ना वो सच है, तुम्हारे बोलने और करने में एक। हाँ तुम तो बस पीठ पर थपथपाने लगे, तुम तो मार सकते हो, तुम तो उनके साथ कुछ दंगल लड़ सकते हो। अरे कन्हैया बोले हाय क्यों नहीं, सारे तुम जानते नहीं हो मेरा प्रभाव को। अच्छा यहाँ पर एक छोटे से सिद्धांत हमारे पास देखो कन्हैया जो ऐसा दिखा, देखो जब इसे दीर्घ विषय दिखाया ना जो आप देख रहे हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान इतने विशाल स्वरूप देख करके देखो सखा लोग की कोई ऐश्वर्य भाव कोई स्तुति नहीं किया। तो सही भगवत गीता में हम लोग जैसे 11 अध्याय विश्व रूप दर्शन जो है भगवान जब अर्जुन के जब विश्व रूप दर्शन कराया अनंत काल के रूप में अनंत जो है रूप में अर्जुन ने क्या की रथ से कूद गए और कूद करके हाथ जोड़ कर सखीति मत्तं प्रसवं जदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देखो अर्जुन ने क्या किया, बोले मैं आपके सखा करके पुकारा, मैं सखा करके आपके गल में जन्म दिया, आपके साथ मैंने नाचन के ये तो मेरा अपराध हो गया सब शुद्धि करने। किंतु देखो ये पर सखा लोग एक एक इस पर नहीं हुए क्योंकि सखा में जो इसके कहा जाता है शुद्ध सख भाव, जहां पर देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य। चैतन्य चेतामृत में ऐसे वर्णन किया कृष्णदास कविराज ऐश्वर्य देखने पर भी मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? भले इतना तो ऐश्वर्य दिखा। हमारे आचार्य जी बात करते हैं देखो द्वारिका मथुरा में जितने ऐश्वर्य वैकुंठ आदि अनंत वैकुंठ में जितने ऐश्वर्य है अपलेंस है यदि एक तराजू पर रख दिया जाए एक पल्ले पर रख दिया जाए और वृंदावन के ऐश्वर्य एक तरफ रख दिया जाए तथापि वृंदावन के ऐश्वर्य क्या होगा
भारी हो जाएगा। जैसे हम लोग भारी है ना, आप लोग नीचे बैठे हुए, हम लोग हल्का है इसलिए ऊपर बैठे हैं। देखो उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये मथुरा के इतने, वृंदावन के इतने ऐश्वर्य है, अपुलेंस है, और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की बात छोड़ दी, अनंत वैकुंठ से लेकर के मथुरा की सारे ऐश्वर्य एक तरफ कर दिया। वृंदावन के ऐश्वर्य को भी बराबर नहीं, वृंदावन के इतने ऐश्वर्य, किंतु वो वृंदावन के ऐश्वर्य क्या है, माधुर्य के द्वारा वो श्रीमंडी इधर ढका हुआ है। इसलिए वृंदावन की जो 3 रसों के बाद जो बताया, विशेष करके जैसे शक, इसमें शक कहने से शुद्ध शक, जिसमें किसी प्रकार मिश्रित नहीं है, और शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध माधुर्य है, प्रेम की ऐसी स्थिति कहा जाता है। ये वृंदावन की विशेष वैशिष्ट्य है। इसलिए वे लोग विश्वास नहीं किया ये कृष्ण भगवान है। दूसरी बात है, नामकरण के समय गर्गाचार्य ने भी कहा गया नारायण समो गुणम, यह तुम्हारे बेटा जो है नारायण के भांति गुण उसमें प्रवेश हो जाता है, और वही इसमें विशाल विशाल काम करते हैं। यहाँ पर इसलिए ये दीर्घ विष्णु पर हम लोग आए हैं। ऐसे सुंदर ये सुरम्य स्थान है, देखो ये जिस स्थान की है इसी कहा जाता है दीर्घ विष्णु। देखते हैं भगवान कैसे सुंदर। इसके आगे की कथा है, जहाँ पर जो कथा है ये दीर्घ विष्णु के स्थान हम लोग आए हैं। इस स्थान में बहुत प्रकार की लीलाएं है, आगे जाके हम कथा को जो पढ़ाएंगे, कथा श्रवण करेंगे। जैसे महाराज ने दास रस से, सप्त रस से, वात्सल रस के भी थोड़ा वर्णन करते हुए, और फिर माधुर्य रस की भी जो बताया, जिसे कहता है साधारण रति, समंजसारती और समर्थारती, ये समस्त रति के विभाजन करके हमारे आचार्य पाद ने सुंदर रूप में वर्णन दिखाया। विशेष करके उज्जवलमणि ग्रंथ आदि जब तक हम लोग अध्ययन नहीं करें तो समझ नहीं पाएंगे। छोटी सी कथा बता देता हूँ एक शब्द में। देखो वृंदावन के कृष्ण जब नहीं आते तब ये कौन है, उनके तो प्रकाश आ गया था। वहीं पर भी हमारे आचार्य जी को सही बात टीका में करते हैं, नंद महाराज जो है वो भी नहीं आए, उनके एक प्रकाश आ गए। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं एक ही प्रकोष्ठ, अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, एक प्रकोष्ठ में नंद महाराज वृंदावन में रहे, और एक प्रकोष्ठ में जो है इस मथुरा में प्रवेश किया, और ये समझ दिखा। विशेष करके कृष्ण जब कंस के एरिना में जब प्रवेश किया उस समय देखा समस्त 12 रस के भक्त थे, 7 गौण रस के भक्त थे और 5 मुख्य रस के गौण रस के भक्त थे। सभी रसों के भक्त जो है कृष्ण के अपने अपने रस माधुर्य के द्वारा वो दर्शन करने लगे। ये समस्त रस विचार भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। इसलिए इतना ही मैं कहता हूँ, ऐसे वास्तव रूप में जो सखा लोग भी जो आए थे वो भी उनके एक प्रकाश, हमारे जीव गोस्वामी पाटिका में लिख रहे संदर्भ में देखो, उसमें लिखा है एक प्रकाश में जो है, एक प्रकोष्ठ में जो है सुबल सिद्धाम आदि वहीं पर भी रहने लगे, और एक प्रकोष्ठ में मथुरा में आ गए। ये समस्त बहुत सुंदर विचार आचार्य पाद दिखाते हैं। पंचगुरु कृपा सिंधु মহারাজের অন্তর্ধানের পর এই প্রথম ওনাকে ছাড়া আমরা মথুরা পরিক্রমা করছি। ওনার চরণে আমার শতকোটি নমন। এখন আমরা এখান থেকে অন্যান্য দর্শনে যাব, আর ওখানে আমাদের নারসিং মহারাজ, পরমহংস মহারাজ, ভারতী মায়ের হরিকথা বলবে। আমার 3 সপ্তাহ পরে প্রথম এতদূর আমি হেঁটে হেঁটে এলাম আপনাদের সঙ্গে उत्साहे, और संपूर्ण परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए आप लोग मुझे इजाजत दें, मैं मठ में वापस जाता हूँ, और आप लोग सब दर्शन करके फिर वापस आएंगे। আপনারা সকলে দর্শন করে ফিরে আসবেন। এখন চলুন খোল করতাল উঠিয়ে নিন। হরে কৃষ্ণ, গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। Hare Krishna, Krishna
आप देख रहे हैं विद्यालंकर बानी के लाइव विद्यालंकर बानी मथुरा देवी चलो मथुरा देवी पंजा स्टेट जाइए बहुत टाइम लगा लिया तो वर्का जी पहुंचना है 8:30 बजे तक महाराज ये तो 10 बजे के मिलेंगे 10 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग कहाँ जाना है नहीं है बैठने को कहीं जगह दर्शन करके निकल जाना है दादीस दर्शन होके सीधा ऑडियो वर्षन के लोग दादीस को तो उलाहना देते हैं वृंदावन छोड़ के क्यों चले गए रिकॉर्ड किया मथुरा जो मैं जो बोला था आप रिकॉर्ड किया कि नहीं रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड किया कितने मिनट बोला बोला महाराज कितने हाउ लॉन्ग है 20 मिनट हो नहीं ओए प्रभु जी ये सही खराब ये है मथुरा देवी मथुरा देवी मथुरा देवी की जय मथुरा देवी
कीर्तन वाले तो आ जाए। We are in the line of Vidyalankarmani. Today we are visiting the interior portion of Mathura Dham. First we went to, just we are returning from Dirgha Vishnu. There we have listened to nice Harikatha from our Acharyas. Now we are on the way. In the middle we have seen Mathura Devi, who is the presiding deity of this Mathura Dham. After that now we are going to visit Shedvara and Adivara. They are doing Shiva Paripata also. Then around 8:25 we have to see Radhakari's temple. So we stay on the line and listen nice Harikatha from our Acharya. Go Premanande, Hari Hari Go. जय वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम यहाँ से पद्मनाभ पहले रास्ते में, पद्मनाभ के बाद आदि भरा फिर चलेंगे। हाँ चलेंगे। पीछे हाँ चलेंगे। Football apa mo? परिक्रमा के लिए वाली रोड आई है।
মনোজ এখন এরপর কোথায় যাবে? হ্যাঁ, এখন কোথায় যাবে? আমি শেষ বানাবো, আদি বানাবো। Here is Ananta Padmanabh temple, left side, right side. অনন্ত পদ। Yeah. Here, here. আচ্ছা আচ্ছা। अनंत पद्मनाभ की जय हो। अनंत पद्मनाभ महाराज की जय। जय। अनंत पद्मनाभ जी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय हो। श्री राधे श्याम। अनंत पद्मनाभ जी, ब्रह्मा जी के पिताजी अनंत पद्मनाभ की जय हो। अनंत पद्मनाभ जी के ब्रह्मा जी के पिताजी हैं अनंत पद्मनाभ। ये है गर्भदेश है विष्णु अनंत पद्मनाभ, जिनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिनके नाभि से कमल निकला और उसको ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, वो है अनंत पद्मनाभ। पद्मनाभ पद्म, जिनके नाभि से कमल निकला, इसलिए नाम पद्मनाभ हुआ। नाभि से कमल निकला, कमल कहाँ से निकला? नाभि कहाँ से निकला? कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সিঙ্গেল লাইন, সিঙ্গেল বলো কিছু। हरे कृष्ण जय राधे। सिंगल दिल ছেড়ে দেব। সিঙ্গেল লাইন দেন তাদের মনোজ আসছেন? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
पंचायती मंदिर केशव महादेव जी पंचायती मंदिर आपने खुद ही कहा मथुरा वाले कृष्ण द्वारका नहीं जाते। सुनो तो, सुनता ही नहीं है। वही तो द्वारका के दूसरे आप मथुरापुरी लेकर के द्वारका में लेकिन ले गए, लेकिन मथुरापुरी तो मथुरापुरी में ही रही ना भाई। हम लोग तो द्वारका चले गए तो देखो वही तो है भाई। काशी छत्र लेके खड़ी है मायापुरी। हाँ तो 100 साल के लिए खाली कर दिया। এখানে হরিকথা হবে মানে এখানে হবে হরিকথা হ্যাঁ আচ্ছা আদিবালা হয় শ্বেতবরাহ আদির বরাহ দুই পরপর मथुरा है, लेकिन वो सब ये कह रहे हैं कि आज मथुरा जी की राजमाना कृष्ण के साथ तुम सब हाँ बस हमें मथुरा राजमहल बन गई। राजमहल बन और किसी को राजमहल এখানে রাখতে হবে এটা নাই বুঝলে হবে না দেখি দেখি कालिया कहाँ है हमारे? कालिया बताए मथुरा में कालिया कहाँ है? कालिया बताए हाँ वो तो बता रहे थे। कौन बता रहे कहाँ कालिया? कालिया मर्दन है। हाँ कहाँ कालिया मंदिर के पास? कौन से मंदिर के पास? कालिया मर्दन कृष्ण कहाँ पर है? कौन सा मंदिर? कालिया मर्दन। এটা ধরুন তো একটুখানি প্রণাম করে আমি নাম করো চলুন সামনে राधे 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 बोलिए। राधे 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 बोलना पड़ेगा। राधे 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 এটা অনন্তদেবের মধ্যে অনন্তদেব মানে কি বলদেব বলদেব কি অনন্ত না ওই জায়গাটা
সবচেয়ে করবে সময়টা, তাহলে কি হবে? সময় তুমি পাচ্ছ অত যায়, তো এখন রাস্তাতে হাঁটছো, কৃষ্ণ নাম করতে করতে ভালো লাগে। হ্যাঁ রাস্তা আসতে যাচ্ছি তো বলে দাও। এই তো নেমেছি, মানে এখানটা অনেক সরু, চওড়া নেই রাস্তা, দেখি। রাধে 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 রাধে, জায়গা দিবি তো দে, নাহলে সরু হয়ে যা। জায়গা মানে সীমানা করে নিয়েছে। তাহলে মহারাজ পরিক্রমার পর এখানেই মথুরায় থাকবে। পরিক্রমা পুরো মথুরায় থাকবে, আমাদের বৃন্দাবন পরিক্রমা পুরো থাকবেন। তারপরে প্রোগ্রাম আছে না, প্রোগ্রাম তো আছে, প্রোগ্রাম করতে হবে নবদ্বীপ এখান থেকে। তারপরে ওখানে নবদ্বীপ আমাদের দোল পূর্ণিমাতে, তারপরে তো ওখানে সবাই আবার কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, হ্যাঁ নবদ্বীপ যেতে হবে। এই মন্দির, এই মন্দির সে আদিবরা মন্দির, এটা শ্বেত বরাহ। আচ্ছা আচ্ছা, শ্বেত বরাহ আচ্ছা, সিংহের আস্তে আস্তে जय श्री बराह भगवान की जय, जय श्री बराह भगवान की। श्वेत वराह की, श्वेत वराह वराहदेव की, वराहदेव की, श्वेत वराह। রাখতে হবে নি, विद्यालय खंडवानी अंधकार हो गया। आप देख रहे हैं विद्यालयों का पानी से बराहदेव
अच्छा एक और आदि बड़ा हो है ना जय आदि बड़ा हरि जय
চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত পরা স্বয়ংবর মনু এবং শতরূপা তার স্ত্রী, এদের দুটি পুত্র প্রিয়ব্রত, উত্থানকর, তিনটি কন্যা আগতি, প্রসূতি, দেবহূতি। এই দেবহূতিকে কর্দম ঋষি হাতে সম্প্রদান করে দিয়েছিল ভগবানের নির্দেশে। ভগবানের নির্দেশে যখন এই দান করে দিয়েছিল, এর 9টি কন্যা হয়। শ্রদ্ধা, শান্তি, লোভা, অগ্নি,